Hello everyone. We have two textbooks for grade 12 in English, Flamingo and Vistas. We have proses and poems in Flamingo and we have supplementary readings in Vistas. Today we'll begin with poem number 1, My Mother at 66, written by Indian poetess Kamla Das from the book Flamingo. Let's get started. Mother at 66 by Kamla Das. Let us quickly go through the contents of the poem. We'll be discussing about the poem itself in detail. Then we'll be discussing vocabulary, that is hard word with their meanings. And lastly, we'll discuss the poetic devices used in the poem. Poetess. Kamla Das is also known as Kamla Suraya. And discussing about her birth, she was born in Kerala, Malabar, on 31st March 1934. She was a well-known poetess. She has written poems in English and in Malayalam also. Some of her works include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories Padmavati, The Harlot, and other stories. She is a very sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. She has a different way of writing. She has a tinge of originality, a tinge of our culture reflected in her poems. My Mother at 66 is such a fine example of this. More about Kamla Das. Kamla Das has received many awards for her literacy contribution, including a few of them. Few of them have been listed here, and the list goes on. She was also a winner of Sahitya Akademi Award in the year 1985. So let's begin the poem. The poem goes like this. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. The poetess Kamla Das was driving from her parents' home. That is, वो अपने पेरेंट्स के घर पे रही हुई थी, अब वहां से वो वापस जा रही थी. शी वॉज ट्रैवलिंग, शी वॉज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट. जब अचानक से उन्होंने अपनी मदर को टू बिड हर गुड बाय उनको देखा अपने पास. अब उनको देखा तो उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया है, दैट इज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. Rose, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon, वो कैसी दिख रही थी उनकी मदर जो थी, डोज मतलब वो थोड़ी देर के लिए कैसे शॉर्ट स्लीप हो जाती है एट नैप टाइप. तो शी वॉज डोजिंग. बट क्या होता है व्हेन द एल्डर पीपल दे डोज, दे स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो उनका माउथ जो है, मुंह जो है वो खुला रह जाता है. तो शी वॉज डोज, ओपन माउथ. और उनका फेस कैसा लग रहा था, एकदम पेल, लाइक शाइनलेस. इट हैड एशन, एशन यानी ग्रेट एश जैसा हो गया था, विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी ग्लो. And she looked like a corpse. A corpse means a dead body. At that moment, she could not realize, like she was filled with pain. She means author. And the poetess says that उनकी जो मदर है वो उतनी ओल्ड लग ही रही थी, उतनी ओल्ड है जितनी वो दिख रही थी. लेकिन क्या हुआ, उस पेन को, उस दर्द को भूलने के लिए उन्होंने अचानक से अपना ध्यान डाइवर्ट कर दिया. कहाँ डाइवर्ट कर दिया, तो द पोएम goes in continuation that she was as old as she looked but soon away. और फिर उन्होंने तुरंत ही अपना ध्यान वहां से हटा दिया, बिकॉज दैट वाज, क्या होता है, हम कभी भी जो अनप्लेजेंट चीजें देखते हैं उसको हम ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहते. वी जस्ट वांट टू स्विच our thoughts, our negativity towards something positive, towards something bright. उसी तरह से उन्होंने क्या किया, she put that thought away immediately. और उसके बाद क्या देखा उन्होंने बाहर, and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, यहाँ से अलग चीज कंटिन्यूशन है. तो उन्होंने जब विंडो से बाहर देखा तो उनको क्या दिख रहा था, अपनी कार की विंडो से बाहर उनको दिख रहा था कि the young trees were sprinting. Sprinting is
रनिंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया। एक तरफ उनकी मदर जो बहुत ओल्ड, जिनको कि उन्होंने लाइफलेस कॉप्स जैसा बोला है, और दूसरी तरफ यहाँ पे इतना यंग ट्रीज जो ऐसे लग रहा है कि भाग रहे हैं। एक्चुअली द ट्रीज आर कांस्टेंट, ट्रीज जो हैं वो स्टेबल है अपनी जगह पे। द कार वाज मूविंग, लेकिन कार के मूव करते करते हमको इस तरह से लगता है कि द ट्रीज आर ऑल्सो स्प्रिंटिंग विद अस। तो इमी बिल्कुल अटर कॉन्ट्रास्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे यंग और ओल्ड एज के बीच में। Then she could see the merry children spilling. अब यहाँ पे भी क्या है, स्पिलिंग। स्पिलिंग इज व्हाट, जैसे हम पानी डालते हैं तो पानी स्पिल हो जाता है, फैल जाता है। तो यहाँ पे स्पिलिंग मतलब है बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, पर फिर जब थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपना मूड चेंज कर दिया, लेकिन फिर से जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद उनकी मदर थोड़े से कुछ यार्ड्स, कुछ डिस्टेंस पे खड़ी थी और उनको फाइनली गुड बाय बिड करना था अपनी मदर को, तो उन्होंने फिर से उनको देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर। उन्होंने फिर से अपनी मदर को देखा और उस टाइम पे फिर से क्या फील किया, शी वॉज वन, पेल एज अ लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर। तो उन्होंने जैसे ही अपनी मदर को देखा तो उनको ऐसा लगा कि उनकी मदर जो है वो एकदम वॉन, वॉन यानी कलरलेस, पेल यानी पीला पड़ जाना। जैसे जब कोई यंग होता है, व्हेन यू नोटिस अ यंग पर्सन, तो उनका फेस जो है इट इज क्रिम्सन, रेडिश होता है, और जैसे जैसे एज पास होती है तो इट बिकम्स पेल, थोड़ा येलोइश हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। एंड इट इज, उसको किसके साथ कंपेयर किया हुआ है, यहाँ पे एक सिमिली यूज की हुई है, एज अ लेट विंटर्स मून। लेट विंटर मून क्या होता है, विंटर जो है वो विंटर में धीरे धीरे जो मून होता है वो अपनी शाइन छोड़ता जाता है, इट बिकम्स ग्लोलेस, इट बिकम्स लाइक उनकी उसकी शाइन कम हो जाती है। तो उस ऐसे मून के साथ कंपेयर किया है उन्होंने अपनी मदर के फेस को। और उस टाइम पे जैसे ही उन्होंने अपनी मदर को देखा तो उनको वापस वही, शी फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, उनको एक ऐसा दर्द हुआ जो उनको जाना पहचाना लग रहा था। जाना पहचाना दर्द कैसा होता है, क्योंकि देखो बचपन से हर बच्चे के दिमाग में एक फियर होता है, माय चाइल्डहुड फियर। तो क्या फियर होता है, हर बच्चा डरता है कि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट ना हो जाए। तो देयर इज अ फियर ऑफ सेपरेशन, देयर इज अ फियर ऑफ डेथ, जो कि हर बच्चे के दिमाग में होता है। तो उनको वही वाला फियर, वही वाला एक दर्द जो है फिर से फील हुआ। शी कुड फील, शी कुड एक्चुअली बेयर दैट पेन, उनको वो पेन जो है वापस वो फील हुआ, और वो फेमिलियर एक था जो उनको पहले भी बचपन में होता था। बट उनको उन्होंने वो, शी डज नॉट वांटेड टू, लाइक शी डज नॉट वांट टू शो दैट शी वॉज इन पेन, उनको अपना दर्द दिखाना नहीं था अपनी मदर को। तो उन्होंने क्या किया, बट ऑल आई सेड वॉज, उन्होंने अपनी मदर को किस तरह से ग्रीट किया लास्ट में, बहुत ही पॉजिटिव नोट से उनको बोला सी यू सून अम्मा। वेर एज उनके दिमाग में यही चल रहा था कि उनकी मदर जो है बहुत ओल्ड है, पता नहीं वो लोग फिर से मिल भी पाएंगे कि नहीं। बट वॉट डिड शी डू, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे स्माइल को 3 बार रिपीट किया हुआ, उसका एक रीजन है, मतलब वो जो शी वॉन्टेड टू हाइड हर एक, शी वॉन्टेड टू कंसील हर फियर, वो अपना दर्द, अपना पेन, अपना डर अपनी मदर से छुपाना चाहती थी। तो बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ उन्होंने अपनी मदर को बोला सी यू सून अम्मा, हम जल्दी मिलेंगे, और उसके बाद स्माइल स्माइल एंड स्माइल किया। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द पोएम। अच्छा, इस पोएम में जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो थे डोज। डोज एज आई सेड, डोजिंग लाइक शॉर्ट स्लीप। जब ऐसे ही कभी ट्रैवलिंग करते वक्त यहाँ ऐसे ही बैठे बैठे भी छोटी सी झपकी लग जाती है, शॉर्ट नैप, दैट इज कॉल्ड डोजिंग। देन एशन, एशन इज पेल एंड ग्रे लाइक एश, एश यानी राख, राख की तरह एकदम कलरलेस ग्रे हो जाना। कॉप्स इज डेड बॉडी, शव। देन स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग इज शॉर्ट फास्ट रनिंग। देन स्पिलिंग, स्पिलिंग इज मूविंग आउट, यहाँ पे स्पिलिंग जो यूज किया हुआ है वो बच्चों के लिए किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज जैसे पानी स्पिल हो जाता है तो इट इज लाइक स्प्रेडिंग ऑन द फ्लोर, लेकिन यहाँ पे है जब बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो दे, शी कुड सी द चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देन वन इज कलरलेस, लाइफलेस, शाइनलेस। पोएटिक डिवाइसेस, सबसे पहले तो इस पोएम को जब हमने रीड किया तो आपने नोटिस किया होगा, लेट्स टेक अ लुक अगेन। पोएम को आप नोटिस कीजिए, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं था। ये जो पोएम थी इट इज इन अ लॉन्ग सेंटेंस। इस पोएम एक विदाउट एनी फुल स्टॉप।
इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस. इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं, लाइक कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है, दैट वील डिस्कस. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे. इसमें इलिट्रेशन भी है, इंटरनल राइम भी है. इंटरनल राइम कैसे है? ड्राइविंग, मॉर्निंग, ing is repeated. Then second, I saw my mother beside me, doors open mouthed. यहाँ पे जो open mouthed लिखा हुआ है, that is synecdoche. Part of the body is used for her mother as a whole. Then her face ashen like that of a corpse. यहाँ पे like word use हुआ है. Like से क्या होता है? Like क्या बताता है? It shows comparison. Comparison between whom? Her face and that of a corpse. मतलब मदर का फेस और एक डेड बॉडी के बीच में कंपैरिजन दिखाई है, एंड विद द वर्ड यूज्ड लाइक. तो लाइक की वजह से इसको हम सिमिली भी बताएंगे. और सिनेक्डॉक क्यों होगा यहाँ पे? बिकॉज हर फेस, द फेस denotes the whole body here, the whole person. And realized with pain that she was as old as she looked, but soon, इसमें alliteration है, repetition है. Then and looked out at young trees sprinting. Young trees sprinting. Sprint कौन कर सकता है? Are the trees capable of running? No. So here personification is used. And also hyperbole, because it looks like an overstatement. Trees cannot sprint. The merry children spilling out of their homes. बच्चे बाहर आ रहे थे, they were spilling out of their home. यहाँ पे मेटाफर है. मेटाफर क्यों है? बिकॉज स्पिलिंग जो है वो पानी के लिए यूज किया जाता है. यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है बच्चों को पानी के साथ. जैसे पानी स्पिल हो जाता है, वैसे यहाँ पे ये चिल्ड्रन स्पिल हो रहा है, लेकिन कोई वर्ड लाइक या एज यूज नहीं किया हुआ है. सो इट इज इम्प्लाइड कंपैरिजन, इसीलिए यहाँ पे हम मेटाफर लिखेंगे. Then I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. अब उनके जो फेस है wan, pale है, उसको किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? लेट विंटर्स मून के साथ. और वर्ड भी यूज किया हुआ है एज. तो देयर इज अ कंपैरिजन with the word as, and so it is simile. Again there is tautology also, क्योंकि wan is also colorless, pale is also colorless, so there was no need of writing both the words. So where two words with a similar meaning have been used, and we call it a tautology. Next, and felt that familiar ache, my childhood's fear. यहाँ पे फियर और फेमिलियर के लिए एलिट्रेशन है. और पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन क्यों है? बिकॉज एक इज नॉन लिविंग थिंग, नो, तो इट कैन नॉट बी फेमिलियर. ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है इसको, फेमिलियर होना एक को. सो एक हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर. बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा. Here alliteration is used, said, see. Last one is all I did was smile and smile and smile. That is repetition. Smile, smile has been repeated just to give a musical effect. With this, we come to an end of this lecture. See you soon. Till then, take care and stay safe.